बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई दुनिया की बात करेंगे। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को आज डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और द इनविजिबल फोर्स शेपिंग आवर वर्ल्ड। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इतने ज़्यादा अहम हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट कि पूरी दुनिया में और जदीद टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें। तो आइए समझते हैं आज का जो मौजू है हमारा। उसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे कि ये कैसे, इसके जो काम है ये कैसे है। टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट की हम बात करेंगे, फिर वर्किंग प्रिंसिपल उनके जो हैं वो कैसे वो काम करते हैं, फिर हम उनकी एप्लीकेशन यानी उनका इस्तेमाल पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल है। और फिर हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कि इसकी वर्किंग पे असरअंदाज होते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर स्ट्रांग करना हो, ज़्यादा बेहतर करना हो, तो क्या क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो आज का मौजू काफ़ी दिलचस्प है और बहुत अहमियत का अमल है। इसे तवज्जो से और गौर से देखिए भी और सुनिए भी। सबसे पहले हस्बे मामूल हम वीडियो देख लेते हैं और सुन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये मैडम ने आपके लिए वीडियो भेजी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को वो समझा रही है। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। You know, there's this incredible invisible force that's pretty much powering the entire world around you. I'm talking about everything from the phone in your hand to the giant cranes that build our cities. Today, we're going to switch on the secret behind it all, the electromagnet. So, think about this for a second. A massive, high speed train, a giant crane lifting tons and tons of steel, and, well, your doorbell. What on earth could those three things possibly have in common? I mean, they seem like they're from completely different worlds, but believe it or not, they all share the exact same elegant, powerful secret. And the answer isn't what you might think. It's not the kind of magnet you stick on your fridge. No, no. It's something way more clever. It's a magnet that you can turn on and off, literally with a flick of a switch. It's a temporary force that we can completely command. So, what exactly is this thing? Well, the clue is right there in the name. An electromagnet is a temporary magnet, and you create it simply by passing an electric current, that's the electro part, through a conductor, like a simple copper wire. That's it. Just two ingredients, electricity and a wire. The second that current starts to flow, a magnetic field just appears, like magic. Honestly, the best way to think about it is like a magnet with a light switch. You flip the switch on, the current flows, and poof, you've got a magnet. You flip the switch off, the current stops, and that magnetic force completely vanishes. It's magnetism on demand. And that right there is the crucial difference. A permanent magnet, the one holding up drawings on your fridge, is always on. Its force is just there, it's constant. But an electromagnet, it's dynamic. It's only magnetic when we tell it to be. And that on demand nature, well, that's its superpower. Okay, so you might be thinking, a controllable magnet, that's a cool little science trick, right? But it's so much more than that. This simple concept is actually a fundamental part of our modern world, and you're about to see just how common it really is. I can pretty much guarantee that you have used an electromagnet at least once today, probably a whole bunch of times without even realizing it. They are literally hiding in plain sight, doing all this critical work all around us. And the range is just incredible. I mean, in a simple doorbell, an electromagnet just pulls a tiny hammer to strike the bell. In your fan, they're creating the rotation that spins the blades. Your speakers use them to turn electrical signals into the sound waves you hear. And then, on a massive scale, they are the absolute workhorses in those industrial cranes that can lift tons of scrap metal. From tiny sounds to immense power, it's all the same principle at work. Okay, so we know they turn on and off. That's cool. What if you need to lift a car instead of just ringing a little bell? See, the true power of an electromagnet isn't just that it's controllable, but how controllable it is. We can do way more than just turn it on and off. We can actually fine-tune its power. We can make it incredibly weak or astonishingly strong. So the question is, how do we do that? How do we turn that dial up or down? Well, it all comes down to a really simple recipe with just 3 ingredients for more power. First, you add more loops. The more turns you have in that wire coil, the stronger the magnet. It's that simple. Second, you pump more current through it. More electricity equals a bigger magnetic punch.
And finally, for the biggest boost of all, you add a metal core. By placing a piece of iron, say, inside the coil, you concentrate that magnetic field, making it dramatically stronger. It basically helps all the magnetic forces get organized and point in the same direction. All right, so we've seen what they are, we've found them hiding in plain sight, and we know how to crank up their power. But what's the one big idea you should walk away with from all this? It all boils down to this one simple but really powerful fact. An electromagnet works only when electric current is passing through it. That force isn't just there. It is a direct result of electricity in motion. And that brings us to the ultimate takeaway. The one word to remember from all of this is control. By figuring out how to use electricity, we gain this incredible ability to create, to shape, and to get rid of a powerful magnetic force whenever we want. We get to decide when it exists, where it exists, and exactly how strong it needs to be. And that control, that is what makes the electromagnet a cornerstone of all modern technology. And that kind of leaves us with a fascinating thought, doesn't it? We found the on switch for magnetism just by using a simple wire and a flow of electrons. It really makes you wonder, what other invisible forces are all around us, just waiting for us to find their on switch? इनविजिबल फोर्स शेपिंग आवर वर्ल्ड, ये जो इनविजिबल फोर्स है जो हमें नज़र नहीं आती, वो हमारी दुनिया को शेप कर रही है, हमारी दुनिया को तब्दील कर रही है। बहुत ज़्यादा यूजेज है इनका, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, जैसा कि आपने वीडियो में सुना भी और देखा भी। तो स्टूडेंट्स, ये सिंगल प्रिंसिपल, ये वाहिद असूल है जो कि इन सब को कवर करता है। इन सब के पीछे एक ही सादा असूल है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है? आम जिंदगी में आप देखें तो लाउड स्पीकर जो है, ये जो स्पीकर हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। मोटर है, पंखा है, जनरेटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं। बुलेट ट्रेन जो बहुत स्पीड से चलती है, बुलेट की तरह, गोली की तरह, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस असूल के तहत चलती है। क्रेन जो है, जो ख़ास तौर पे स्क्रैप वगैरह जो होता है, जो लोहे के मुख्तलिफ किस्म के जो टीन डब्बा होता है, जो स्क्रैप होता है, जो गाड़ियाँ हैं टूटी फूटी हुई, उनको उठाने के लिए ये जो क्रेन इस्तेमाल होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसमें चीज़ों को बार बार बांधना नहीं पड़ता। इनके बारे में हम बात करेंगे। और MRI जो है, ये जो हॉस्पिटल्स में है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू फाइंड द आंसर, लेट्स लुक इनसाइड अ सिंपलर मशीन। ये कैसे काम करते हैं, इन सबको समझने के लिए हम एक सादा तरीन मशीन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल से बनती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल करती है, उसको हम समझते हैं। द हम्बल इलेक्ट्रिक बेल, वो जो हमारे घर में लगी है, कोई मेहमान आता है, कोई आने वाला आता है और वो बेल बजती है, वो बटन बाहर गेट पे लगा है, जब उसको प्रेस किया जाता है तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर लगा हुआ एक ये मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो बेल हमारी बजती है। ठीक है। द हम्बल मशीन इलेक्ट्रिक बेल is a perfect starting point. It is constant ringing is driven by a magnet that can be switched on and off with incredible speed. इसमें जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसको जब मर्जी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लें, जब मर्जी इसको ऑन कर लें, जब मर्जी इसको ऑफ कर लें। ये हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें बैटरी है, ठीक, और ये इसको करंट मुहैया करती है। और ये है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तार का एक लच्छा होता है और इस तार में से जब ये बिजली गुजरती है तो ऊपर एक हैमर लगा हुआ है, एक हथौड़ी लगी हुई है, जो कि एक बल है या एक कटोरी सी होती है मेटल की, उसके ऊपर ये जाके जब लगती है तो ये बल बजती है। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक बल है, जो हमारे घर के अंदर बल होती है, घंटी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के उसूल पर ही काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ तारों का एक तार का एक गुच्छा होता है कि जब उसमें से बिजली गुजरती है, करंट गुजरता है,
तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और जब उसको ऑफ कर दिया जाता है, उसमें से करंट नहीं गुजरता, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसकी वो खसूसियत ख़त्म हो जाती है, फिर वो मैग्नेट नहीं रहता। दूसरे मैग्नेट का ये है कि वो परमानेंट हैं या टेम्परेरी हैं। वो एक ख़ास जो परमानेंट है वो तो हमेशा मैग्नेट ही रहेंगे। टेम्परेरी जो है वो भी उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी मैग्नेटिज्म को ख़त्म किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उन सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब मर्जी हम इसमें से करंट गुजारेंगे और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेंगे, और जब चाहेंगे करंट जो है उसका स्विच ऑफ कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। यानी इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम अपनी मर्जी से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं और अपनी मर्जी से इसे ऑफ कर सकते हैं। एक आम तार फिर बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक बेल को हमने एट द हार्ट ऑफ द बेल इज अ सिंपल बट पावरफुल आइडिया। ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इसके सिंपल और एक सबसे पावरफुल आइडिया है। इस आइडिया की बुनियाद पर ये मुख्तलिफ जो है चीज़ें बनाई गई हैं। दिस कंपोनेंट इज द की, इट्स जस्ट अ वायर। ये सिर्फ एक तार है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जस्ट अ वायर, एक तार है रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ मेटल। जो पीस ऑफ मेटल यानी कोई भी मेटल है उसके किसी टुकड़े के ऊपर ये तार लिपटी होती है। बाय इटसेल्फ इट डज नथिंग, खुद से वो कुछ नहीं करती। वो जो तार लिपटी हुई है उसके ऊपर वो खुद से कुछ नहीं काम करती। लेकिन जब उसको कनेक्ट कर लिया जाता है करंट के साथ, बैटरी के साथ, तो वो फिर काम करना शुरू हो जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। ये एक तार है, कॉपर की तार, और इसके अंदर जो है वो एक हमने कोर रखी हुई है, लोहे का एक पीस रखा हुआ है, इसे कोर कहते हैं, जिसके ऊपर ये तार लिपटी होती है। जब यहाँ से ये बैटरी है या करंट फ्लो करने का, करंट का एक सोर्स है। जब ये बटन यहाँ से स्विच हम ऑन करेंगे तो करंट इसमें से गुजरेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, और जब इसको ऑफ कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी, ये सिर्फ मैग्नेट नहीं रहेगी, ये सिर्फ एक तार बन जाएगी, सिंपल तार जो किसी चीज़ को अपनी तरफ नहीं खींचेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। क्या है? तार का एक लच्छा है। आप एक गुच्छा बना लें और उसको लपेट दें आप किसी मेटल की किसी कील के साथ, या किसी कील के ऊपर, या किसी और मेटल का कोई पीस है उसके ऊपर उसे लपेट दें और उसमें से करंट गुजारें, तो वो मैग्नेट बन गया। इतना आसान तो है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत आसानी से बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स, इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से गुजरती है तो क्या होता है? उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब हम इस गुच्छे में से, इस कॉइल में से बिजली गुजारते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor, it becomes a magnet। ये सिंपल सा उसूल है। Such a magnet that is produced by passing current through a conductor is called an electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता है? When electric current flows through a conductor, it becomes a magnet। Such a magnet that is produced by passing current through a conductor is called electromagnet। Electromagnet is a conductor। कंडक्टर वो होता है जिसमें से बिजली गुजर जाती है। Electromagnet is just a conductor। When we pass through it current, it becomes an electromagnet। तो ये जो सिस्टम है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये हमारे पास एक तार का लच्छा है, एक कायल है, और जब हम इसमें से यहाँ से करंट गुजारेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो उसके गिर्द जो है वो एक बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट तार का एक लच्छा होता है, एक कायल होती है, कि जब हम उसमें से बिजली गुजारते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, और चूंकि ये करंट से या बिजली से या इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द पावर इज नॉट जस्ट द मैग्नेटिज्म, इट इज कंट्रोल। सिर्फ पावर ही नहीं है, हमारा जो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि कंट्रोल हमारे पास होता है इसका। यानी कंट्रोल का मतलब है जब मर्जी हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दें, जब मर्जी हम इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ख़त्म कर दें, और जब मर्जी हम इसको वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लें, या जब मर्जी हम इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लें। यानी कैसे होगा ये कि जब करंट जो है, आप देखें ये गाड़ी है और ये क्रेन का अगला हिस्सा जो मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब इसमें से
करंट ऑन होगा तो ये मैग्नेट बन गया और इसने इस गाड़ी को उसके साथ वो चिपक गई और अट्रैक्ट किया और इसको ऊपर उठा लिया। ठीक, यानी सिर्फ एक स्विच ऑन करना है, बटन ऑन करना है, तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब करंट ऑफ हो जाएगा, बटन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो इसने गाड़ी को छोड़ दिया। तो इसमें ये आसानी है कि चीज़ों को बार बार बांधना नहीं पड़ता कि एक रस्सी लें और कोई उसको फिर बांधें और फिर दूसरी जगह जाके खोलें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के है कि मेटेलिक चीज़ों को, ये जो आयरन की बनी होती है, उनको ये अपनी तरफ खींच लेता है। सिर्फ बटन ऑन और ऑफ करना है, स्विच ऑन या ऑफ करना है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। अगर हम इसको ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहें तो हम करंट ज़्यादा कर देंगे, और अगर हम कमज़ोर बनाना चाहें तो उसे कम कर देंगे। ऑफ करना चाहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। मास्टरिंग द फोर्स, द थ्री लीवर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तीन कुव्वतें या तीन फैक्टर्स या तीन जो लीवर्स हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर है उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें से नंबर वन क्या है? नंबर वन इज नंबर ऑफ लूप्स। वो जो तार हमने लिपेटी है ना उस कोर के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर, वो जितनी ज्यादा उसके टर्न होंगे, यानी जितना ज्यादा उस तार को लपेटेंगे हम, उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप ज्यादा करने से, टर्न ज्यादा करने से उसकी पावर में इजाफा हो जाएगा। और नंबर टू है अमाउंट ऑफ करंट। अगर हम करंट बढ़ा देंगे, करंट बढ़ा देने से क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसकी जो पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो बढ़ जाएगी। और तीसरा जो फैक्टर है जो उस पर असर करता है वो है द कोर मटेरियल, कि उसके अंदर जो हमने कोर रखी है, उसके अंदर जिस चीज़ के ऊपर हमने तार लपेटी है, वो जो अंदर कोर है वो किस चीज़ की है। यानी अगर वो लोहे की है तो वो बहुत अच्छा मैग्नेट बनेगा। अगर कोई इंसुलेटर है, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो वो इतना अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इतना पावरफुल नहीं बनेगा। तो तीन फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ पे, उसकी ताकत पे, उसकी कुव्वत पे असर करते हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ लूप्स। नंबर टू, अमाउंट ऑफ करंट। एंड नंबर थ्री, कोर मटेरियल, कि आपने उसके अंदर कौन सा मटेरियल की, जो मेटल है वो कौन सी रखी है, मटेरियल किस तरह का है। पहले लीवर की या पहला जो फैक्टर है उसकी हम बात करते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स। द स्ट्रेंथ of an electromagnet increases by increasing the number of turns or loops. More loops concentrate the magnetic effect. अगर लूप ज़्यादा होंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें देखिए लूप्स जो हैं वो कम हैं, और इसकी जो फ्यूअर लूप्स हैं, यानी थोड़े लूप्स हैं, इसमें चक्कर हम थोड़े हैं, टर्न थोड़े हैं, तो ये एक कमज़ोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। इसमें लूप्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तार हमने लपेटी है, तो अब ये जो मैग्नेट बना है ये ज़्यादा पावरफुल है। तो स्ट्रेंथ का एनएसआर, द स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लूप्स। अगर नंबर ऑफ लूप्स कम होंगे तो कमज़ोर मैग्नेट बनेगा, और अगर नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा ताकतवर मैग्नेट बनेगा। तो पहला फैक्टर जो असर करता है उसकी स्ट्रेंथ पे, वो नंबर ऑफ लूप्स हैं। नंबर टू, दूसरा लीवर, वो है इंक्रीजिंग द करंट। अगर हम करंट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? द स्ट्रेंथ of an electromagnet increases by increasing the amount of current. A greater flow of electricity produces a stronger magnetic field. ये हमने बैटरी एक लगाई हुई है, करंट जो है इसमें से कम गुजर रहा है, तो ये कमज़ोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है। अब हमने ये पावर, इसकी जो वोल्टेज है वो बढ़ा दी है, करंट ज़्यादा बहेगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेट जो है, ये ज़्यादा मैग्नेट जो है ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा। तो दूसरा फैक्टर है करंट। अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, अगर करंट जो है वो कम कर देंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। एडिंग मेटल कोर, वो जो कोर है जिसके ऊपर हमने उसको वायर को लपेटा हुआ है, उस कोर को हमने देखना है कि वो कैसी है। कोर इज द मेटल ऑन विच वी वाइंड द वायर।
वो कोर वो मेटल है जिसके ऊपर हम तार को लपेटते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस व्हेन अ कोर इज प्लेस्ड इन द काइल। जब काइल के अंदर हम, वैसे काइल का भी बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन उसके अंदर जब कोर रखेंगे और खासतौर पे मेटल की और खासतौर पे आयरन की, तो वो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। द कोर मटेरियल एक्ट्स एज अ पावरफुल एम्पलीफायर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये हमने एक कायल ली है, इसके अंदर कोई कोर नहीं है, अंदर इसके अंदर कोई मेटल नहीं रखा हुआ। और उसके बाद ये है, हमने एक कोर जो है वो एक मेटेलिक कोर है, एक मेटल की बनी हुई, एक इसके अंदर कोर रख दी है, उसके ऊपर इस तार को लपेटा है, तो अब ये एक पावरफुल मैग्नेट बन गया। तो जब हम कोर रखते हैं, उसके अंदर कोई मेटल रखते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो तीन चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर या स्ट्रेंथ पर असर करती हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ लूप्स। नंबर टू, करंट, अमाउंट ऑफ करंट। एंड नंबर थ्री, इनविजिबल फोर्स रिवील्ड। तो हम इन चारों की बात करते हैं। इसमें स्पीकर के अंदर आप देखें तो ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। ये जो लाउड स्पीकर होते हैं, जो स्पीकर हैं, चाहे वो रेडियो का है, टीवी का है, या हमारे लैपटॉप का है, कंप्यूटर का है, हमारा जो एम्पलीफायर जो असेंबली में जो इस्तेमाल करते हैं उसका स्पीकर है, मस्जिद का जो स्पीकर है, सब के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, ये मोटर है, बिजली से चलने वाली मोटर है, या जनरेटर है जो बिजली पैदा जिससे की जाती है, उसके अंदर भी, पंखे के अंदर भी यही उसूल इस्तेमाल होता है कि ये तारें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती हैं, और जिसकी वजह से ये पंखा है, मोटर है, जनरेटर है, ये चलते हैं। और नंबर थ्री ये यूज़ होता है, हमने बात किया क्रेन, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन होता है, बाहरी जो स्क्रैप वगैरह हैं, ये टीन डब्बा है, मेटल की चीज़ें हैं, उनको ये उठाता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। सिर्फ बटन स्विच ऑफ करना पड़ता है हमें, इसको इतने बड़े सामान को बांधना नहीं पड़ता, खोलना नहीं पड़ता, बस ये स्विच ऑन कर दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, और ये चीज़ों को अपने साथ चिपका लेगा। और जब स्विच ऑफ कर देंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका ख़त्म हो जाएगा, और ये उन चीज़ों को छोड़ देगा। तो इसमें बहुत आसानी है। और नंबर फोर, बुलेट ट्रेन, ये भी जो बहुत ज़्यादा स्पीड है, जापान में चलती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के उसूल पे ही चलती है कि इसकी जो ट्रेल है, जो इसकी जिसके ऊपर ये चलती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और इसमें उस इलेक्ट्रिक मैग्नेट की वजह से ये इसकी स्पीड जो है बुलेट की तरह, गोली की तरह बहुत तेज़ होती है। और बेशुमार चीज़ें हैं जिनमें इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ये इस्तेमाल ना हो। हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में, हर जगह पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो रहे होते हैं। वन सिंपल लॉ, अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो बुनियादी तौर पे उसूल क्या है, एक ही उसूल है कि जब आप किसी तार में से हम बिजली गुजारते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। ये उसूल है बुनियादी, जो कि हमारी पूरी जो दुनिया है उसके बेशुमार जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ये चलाता है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब टू मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जो एमआरआई है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई वो हो, या काउंटलेस टेक्नोलॉजीज डिपेंड ऑन अ सिंगल एलिगेंट ट्रूथ। और वो सिंगल एलिगेंट ट्रूथ क्या है, अ करंट इन अ वायर क्रिएट्स अ मैग्नेट। Understanding this principle is understanding the invisible energy of the modern world. जदीद दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है, जदीद दुनिया की जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, हम एक इस बुनियादी उसूल को अगर हम समझ जाएं कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जब हम करंट ऑफ करते हैं तो उसकी मैग्नेटिज्म उसका ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में इन डिटेल पढ़ा। हमने उसको डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या है। तो मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर हमने ये समझा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इट इज़ टेम्परेरी मैग्नेट। ये आर्जी होता है, जब स्विच ऑन करते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है, और जब स्विच ऑफ कर देते हैं और करंट इस कॉइल में से नहीं गुजरता तो वो मैग्नेट नहीं रहता। तो ये टेम्परेरी है, और हम अपनी मर्जी से इसे मैग्नेट बना लेते हैं और मैग्नेटिज्म इसकी ख़त्म भी कर देते हैं।
फिर इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स की हमने बात की कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। तो एक तो हमने कहा है कि ये एक कायल होती है जो रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इसमें से जब बिजली गुजरती है तब ये मैग्नेट बनता है, जब बिजली नहीं गुजरती तो ये मैग्नेट नहीं बनता। और दूसरा इसमें हमने देखा है कि वो कंडक्टर जो होता है, जो कायल होती है, वो कायल यानी कंडक्टर, कंडक्टर उसको कहते हैं ना जिसमें से बिजली गुजर सके, उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे लोहा है या कापर है, ये कंडक्टर से। तो कंडक्टर बिकम्स अ मैग्नेट कब बनता है? जब करंट उसमें से गुजरता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, काम करने का उसूल है। फिर हमने इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, चूँकि इसके अंदर ये खूबी है कि हम इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और दूसरी खूबी ये है कि हम जब मर्जी चाहें तो इसको मैग्नेट बना लें और जब मर्जी चाहें तो इसकी मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर दें। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है। तो चंद एक चीज़ें हमने बात की थी कि जिनमें ये इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिक बेल है, जो घंटी है उसमें इस्तेमाल होता है। फैंस और मोटर्स वगैरह में, जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है। स्पीकर्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है। डायनमो और जनरेटर, जो बिजली जिससे बनाई जाती है, गाड़ियों के अंदर एक डायनमो लगा होता है जो बिजली बनाता है, जिससे गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है उसकी लाइट जलती है, उसका हॉर्न और ये सारे काम होते हैं। तो डायनमो के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। क्रेन जो होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारे हैं, अक्सर व बेशतर हैं, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। फिर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी ताकत पे असर करते हैं। तो हमने एक देखा कि नंबर ऑफ लूप्स जो है, जो चक्कर हैं, जो लूप्स हैं, वो उसको हमने स्टडी किया कि अगर हम लूप ज़्यादा कर देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अगर वो टर्न ज़्यादा कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है अमाउंट ऑफ करंट, अगर करंट बढ़ा देंगे तो भी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और तीसरा जो है, जो फैक्टर है वो इस पर असर करता है, वो है कि कोर, जो उसके अंदर हम मटेरियल रखते हैं, उस तार के अंदर, यानी तार जिस चीज़ के ऊपर लिपटी होती है उसे कोर कहते हैं। उस कोर जो है, उसके जो नेचर है उस पर भी इसका डिपेंड करता है कि वो कोर जो है वो किस नौइयत की है, किस चीज़ की है, किस मेटल की है। तो सबसे अच्छा जो कोर बनता है वो आयरन से बनता है, लोहे का होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ पर असर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक आपको पसंद आया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें ये इस्तेमाल ना होता हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये हर जगह इस्तेमाल होता है।